Yes, sir. Good morning, everyone. Yesterday we had discussed the meaning and accounting treatment of renewal of a bill of exchange, retiring a bill of exchange under rebate before its maturity, and also of insolvency of acceptor. Now, any doubt in the concept and the accounting treatment? No? Okay. Then let's do an illustration to see how this accounting treatment is done. Write down this question and make two formats of journal. I am reading out the question. Mehul drew two bills of exchange of rupees 20,000 and 10,000. So Mehul is drawer for a period of 2 months and 3 months respectively. And Nandini accepted, means Nandini is acceptor on 15 September 2020. The second bill was discounted from the bank at 12% per annum on 18 September, means after 1 month and after 3 days. 15 सितंबर को मिला और 18 सितंबर को ही सेकंड बिल डिस्काउंट करवा लिया. Nandini paid the first bill amount on 18th October and Mehul gave her a rebate at 6% per annum. ठीक है. फर्स्ट बिल की मैच्योरिटी कब होनी थी? 2 मंथ्स के बाद. 2 मंथ्स यानी 18th नवंबर, लेकिन उसने पे कर दिया 18th अक्टूबर को. दैट मीन्स 1 मंथ अर्लियर. तो 0.5% की रिबेट मिल जाएगी उसे. सेकेंड बिल वॉज डिसऑनर्ड, नोटिंग चार्जेस ₹50. On Nandini's request, Mehul accepted an amount of ₹5,050 immediately and drew another bill for the remaining amount with interest at 24% per annum for 1 month, which was duly paid on its maturity. Past journal entries in the books of both. क्वेश्चन लिख लो और दो फॉर्मेट्स बना लो जर्नल के और फिर बताओ, इसे अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे उसके बाद. Drawn? Okay, now let us start passing the journal entries. First entry for acceptance of the bill. Mehul is drawer, so entry in the books of Mehul will be, उससे पहले डेट्स लिख लेते हैं. फर्स्ट डेट इज 15 सितंबर. ठीक है. देन मैच्योरिटी ऑफ द बिल्स 18th. 15 सितंबर को जो बिल ड्रॉ हुआ उसकी मैच्योरिटी डेट क्या है? 2 months and 3 days. So that will be 18th November. लेकिन वो वाला बिल पहले ही पे हो गया अंडर रिबेट, तो इसलिए उसकी मैच्योरिटी डेट हम अलग से नहीं लिख रहे 18 नवंबर वाली. सेकेंड बिल की मैच्योरिटी डेट है 18 दिसंबर. 3 months 3 days फ्रॉम 15 सितंबर. ठीक है. उसके बाद हमें दिया हुआ है नंदिनी पेड द फर्स्ट बिल अमाउंट ऑन 18th अक्टूबर. तो 18th अक्टूबर की एक डेट आ गई. सेकेंड बिल वॉज डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक ऑन 18 सितंबर. 18 अक्टूबर से पहले 18 सितंबर की एक डेट आ गई. ठीक है. फिर
सेकेंड बिल डिसऑनर होने के बाद 18 दिसंबर को अगर वो डिसऑनर हुआ, उसके बाद वो रिन्यू हुआ फॉर 1 मोर मंथ, तो 18 दिसंबर से 1 मोर मंथ विल बी 18th January plus 3 days, so 21st January will be the maturity date of the new bill, renewed bill. तो ये सब dates हमने लिख ली. Now first entry will be Prishita, what will be the first entry in the books of Mehul? The bills receivable 1 account debit, bills receivable 2 account debit to Nandini. Very good. 2020 September 15, bills receivable 1 account debit 20,000, bills receivable 2 account debit 10,000, to Nandini 30,000. Acceptance received. So written. What will be the entry for this same transaction in the books of Nandini? Mehul debit to bills payable 1 and 2 account. Very good. 2020 September 15, Mehul debit 30,000, 2 bills payable 1 account 20,000, 2 bills payable 2 account 10,000. Acceptance given. So written. Now if we see the dates, in September there is another transaction taking place on 18th September. Which is that transaction? That bill was discounted from the bank. Yes, second bill was discounted from the bank. तो मेहुल की बुक्स में क्या एंट्री आएगी 18 सितंबर को? So bank account debit, discounting charges account debit with 300 and 2 bills receivable 2 account. Very good. 2 bills receivable 2 account और उसका अमाउंट था 10,000, तो पहले उसे क्रेडिट कर दो 2 लाइन छोड़ के. डिस्काउंट किस रेट पे कराया है? 12% पर एनम, मींस 1% पर मंथ. और कितना पीरियड है? सेकेंड बिल का पीरियड था 3 मंथ्स, उसकी मैच्योरिटी थी 18th दिसंबर की, और कब कराया डिस्काउंट? 18 सितंबर. सो 3 मंथ्स का पूरा पीरियड है. 1 मंथ का अगर 1% है इंटरेस्ट, 1% कितना हुआ 10,000 का? 100. तो 1 मंथ का 100 है, तो 3 मंथ्स का 300. एब्सोल्युटली राइट. So discounting charges account debit 300 and remaining amount bank account debit 9,700. Bill discounted from bank. So written. इसकी एंट्री नंदिनी की बुक्स में आएगी? Sir, no. No, because Nandini is not involved in this transaction. अब 18/9 के बाद देखें तो कौन सी डेट है नेक्स्ट? 18th October. What is happening on 18th October? Sir, Nandini paid the first bill amount. Yes, which was maturing on which date? Otherwise, 18th November, क्योंकि 15 सितंबर को ड्रॉ हुआ था और 2 मंथ्स का पीरियड था, तो 15 नवंबर प्लस 3 डेज, 18th नवंबर को मैच्योरिटी थी, लेकिन अमाउंट मिल गया 18th अक्टूबर को, यानी 1 मंथ अर्लियर. सो व्हाट शुड बी द एंट्री इन द बुक्स ऑफ मेहुल?
ऑन 18th अक्टूबर। इसको पैसे मिल गए और बिल रिसीवेबल बैंक अकाउंट डेबिट, पहले डिसऑनर सॉरी हाँ बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट, टू बिल्स रिसीवेबल वन अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल वन था 20,000 का, तो 20,000 अमाउंट लिख दिया क्रेडिट कॉलम में। रिबेट 1 मंथ पहले, तो 1 मंथ यानी 6% पर एनम है, तो मंथली 0.5% हो गया 0.5%। 0.5% ऑफ 20,000 इज 100 और रिमेनिंग अमाउंट मिल गया बैंक में। सो बैंक अकाउंट डेबिट 19,900, रिबेट अकाउंट डेबिट 100, टू बिल्स रिसीवेबल वन अकाउंट 20,000, बिल्स रिसीवेबल रिटायर्ड अंडर रिबेट। Now entry for this in the books of नंदिनी। जो रिबेट मेहुल के लिए एक्सपेंस है वही रिबेट नंदिनी के लिए गेन है। तो 18th अक्टूबर को नंदिनी की बुक्स में क्या एंट्री होगी? बिल्स पेबल वन अकाउंट डेबिट 20,000, टू बैंक अकाउंट 19,900 जो अमाउंट उसने पे किया, एंड टू रिबेट अकाउंट 100 क्योंकि उसके लिए ये रिबेट गेन है। बिल्स पेबल रिटायर्ड अंडर रिबेट। I think there is some connectivity issue because of which Prishita is getting muted repeatedly. Never mind. उसके बाद अब नेक्स्ट डेट कब है? 18th अक्टूबर के बाद नेक्स्ट डेट इज 18th December. That is the maturity date of second bill. एंड सेकेंड बिल मैच्योरिटी डेट पर पे हो रहा है या डिसऑनर हो रहा है? द क्वेश्चन से सेकेंड बिल वाज डिसऑनर्ड, तो डिसऑनर की एंट्री पहले मेहुल की बुक्स में। December 18, नंदिनी डेबिट टू बैंक अकाउंट, $10,050। प्रीशिता क्या ऑडियो में फिर अनम्यूट हुई फिर म्यूट हो गई? कुछ प्रॉब्लम है इसकी कनेक्टिविटी में। ओके, दिस वाज बिल डिस्काउंटेड विच हैज बीन डिसऑनर्ड। तो मैच्योरिटी डेट पर बिल था बैंक के पास, बैंक ने प्रेजेंट किया होगा, वो डिसऑनर हो गया। नोटिंग चार्जेस 50 रुपीज बैंक ने पे किए होंगे और बैंक ने बिल का अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस ड्रॉर के बैंक अकाउंट से ले लिया। सो मेहुल की बुक्स में क्या एंट्री हुई? नंदिनी डेबिट। उसने अब नंदिनी से ये पूरा अमाउंट लेना है 10,050, टू बैंक अकाउंट 10,050, बिल्स रिसीवेबल टू डिसऑनर्ड। ठीक है नंदिनी, याद से आप ले लेना मेहुल से ये अमाउंट। Now entry for this dishonor in the books of Nandini. December 18, bills payable to account debit 10,000. नोटिंग चार्जेस नंदिनी का एक्सपेंस है, एक्सेप्टर का एक्सपेंस होते हैं। सो नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 50 रुपीज, टू मेहुल 10,050, बिल्स पेबल डिसऑनर्ड। On Nandini's request, Mehul accepted an amount of rupees 5,050 immediately and drew another bill. मतलब ये बिल रिन्यू हो रहा है, तो रिन्यू में फर्स्ट एंट्री होती है ओल्ड बिल को कैंसिल करने की, वो हम कर चुके दोनों की बुक्स में डिसऑनर वाली। नेक्स्ट एंट्री होती है इंटरेस्ट ड्यू की।
मेहुल के लिए ये इंटरेस्ट इनकम है, ठीक है, तो उसकी बुक्स में एंट्री होगी नंदिनी डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट है 24% पर एनम, ठीक है, 24% पर एनम, मतलब पर मंथ कितना हो गया, 2% पर मंथ। लेकिन 2% लगना किस अमाउंट पे, अब नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें जनरली स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या कर देते हैं, 10,000 का बिल था तो 10,000 पे इंटरेस्ट लगा देते हैं 2%। नहीं, 10,000 में 10,050 देखो नंदिनी से लेने थे, जिसमें से 5,050 रुपीज वो इमीडिएटली पे करने को तैयार है। तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा, 10,000 में से 10,050 में से 5,050 शी इज पेइंग इमीडिएटली। सो रिमेनिंग 5,000 का 2% निकालना है, एंड दैट इज 100 रुपीज। सो नंदिनी डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 100 इंटरेस्ट ड्यू, एंड एंट्री फॉर दिस इन द बुक्स ऑफ नंदिनी, उसके लिए ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है। सो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू मेहुल 100। इंटरेस्ट की एंट्री के बाद थर्ड एंट्री आती है रिन्यूअल के टाइम पे, पार्ट पेमेंट और न्यू एक्सेप्टेंस की। तो उसके लिए मेहुल की बुक्स में क्या एंट्री होगी, जितना अमाउंट मिल गया 5050 वो बैंक में डेबिट हो जाएगा, ठीक है, और इंटरेस्ट मिलाकर 5,000 रिमेनिंग अमाउंट और 100 इंटरेस्ट, इसका मतलब न्यू बिल बनेगा। तो न्यू बिल बना 5,100 का। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 5,100, बैंक अकाउंट डेबिट 5,050 टू नंदिनी 10,150। 10,050 उससे लेने थे बिल और नोटिंग चार्ज के, और 100 इंटरेस्ट के। नरेशन में पार्ट पेमेंट एंड न्यू एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। Entry for this in the books of Nandini. Mehul debit 10,150 to bills payable account 5,100 जो न्यू बिल बना, रिमेनिंग अमाउंट प्लस इंटरेस्ट का, एंड टू बैंक अकाउंट 5,050 जो अमाउंट उसने पे कर दिया, न्यू एक्सेप्टेंस एंड पार्ट पेमेंट गिवन। Now next date will be the maturity date of this new bill. This new bill has been drawn on 18 December for a period of 1 month. So due date will be 18th January plus 3 days of grace, that is 21st January. And it was, the new bill was duly paid on its maturity date. So in the books of Mehul, bank account debit to bills receivable account 5,100, bill amount received. And in the books of Nandini, bills payable account debit 21st January 2021। ये ध्यान रखना, ईयर भी चेंज हो जाएगा, दिसंबर से जनवरी हो गया है, तो 2020 चल रहा था अभी तक, अब 2021 लिखना होगा डेट कॉलम में। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5,100, बिल अमाउंट पेड।
अब आपने होमवर्क में क्या करना है, प्रिपेयर, ये लिख लो, प्रिपेयर ए, इन द बुक्स ऑफ मेहुल लेजर अकाउंट्स ऑफ बिल्स रिसीवेबल एंड नंदिनी। ये 2 लेजर अकाउंट आपने बनाने हैं मेहुल की बुक्स में और उसमें सारी एंट्रीज पोस्ट करनी है। एंड बी पार्ट लिखो क्वेश्चन का, इन द बुक्स ऑफ नंदिनी लेजर अकाउंट्स ऑफ बिल्स पेबल एंड मेहुल। ये 2 लेजर अकाउंट्स बनाने हैं नंदिनी की बुक्स में और उनमें भी ये फिर एंट्रीज सारी पोस्ट करनी है। And after doing this, you will attempt all remaining questions of this chapter from the book. We'll stop over here for today. Any doubt, anyone? No? Okay, thank you.